الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف عقل دیا، اور ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف شہوت عطا فرمائی، اور تیسری قسم کی مخلوق وہ ہے جس کو رب کائنات عز و جل کی ذات نے شہوات کے ساتھ ساتھ عقل کے چراغ سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق جس کو صرف عقل عطا ہوئی وہ فرشتے ہیں، اور وہ مخلوق جس کو صرف شہوت دی گئی، عقل سے بہرہ ور نہیں کیا گیا، وہ حیوانات ہیں، جانور ہیں۔ اور وہ مخلوق جس کو عقل کے چراغ سے بھی سرفراز کیا گیا اور شہوت کی بھٹی میں بھی پیسا گیا، وہ حضرت انسان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، ایک وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف شہوت دی، اور بیچ میں انسان ہے کہ اس کو فرشتوں کی طرح عقل بھی دی گئی اور حیوانات کی طرح شہوت بھی دی گئی۔ تو اس میں حکمت کیا ہے کہ انسان ہی کو 2 چیز عطا کی گئی، فرشتوں کو دے دی جاتی 2 چیزیں، یا حیوانات کو دے دی جاتی 2 چیزیں، انسانوں ہی کو کیوں دی گئی؟ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یا انسانوں کو 2 چیز نہ دینے کے بجائے ایک چیز دے دیا جاتا، یا عقل دے دی جاتی یا شہوت دے دی جاتی، لیکن رب کائنات عز و جل نے دونوں چیزیں انسان کو عطا کی۔ تو اس میں بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے، حکمت یہ ہے، راز یہ ہے کہ انسان کو یہ 2 چیزیں دے کر رب کائنات نے اس کو گویا کی آزمائش میں ڈال دیا۔ اب آزمائش اس طرح کہ اگر یہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اپنے عقل کے بلبوتے پر سوچ کر رب کائنات کی عبادت میں اپنے دن اور رات گزارتا ہے، تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ اور یہی انسان عقل کے تقاضوں کو چھوڑ کر اور شہوت سے مغلوب ہو کر جب اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو یہی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے، اس کا کلمہ پڑھ کے، اس کی عبادت کر کے، اس کی ریاضت کر کے، اس کو اپنا معبود مان کر جب اس دنیا سے جاتا ہے، تو وہ فرشتوں سے بھی افضل والا ہوتا ہے۔ اور یہی انسان جو دنیا داری میں پھنس کر رہ جاتا ہے، اپنے رب کی ایک نہیں مانتا، رب کے حکم کی عدولی کرنے لگتا ہے، اس کی نافرمانی میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے، نمازیں ایک نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، رب کے فرمان اور رب کے احکام پر عمل نہیں کرتا، تو یہی انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایسے کہ قیامت کے دن جنت فرشتوں کو رب تعالیٰ نہیں دے گا، اور رب تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں چوپایوں کو نہیں ڈالے گا، جانوروں کو نہیں ڈالے گا،
बल्कि जन्नत रब ताला उस इंसान को देगा जो इबादत गुजार रहा होगा, जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाला होगा, उसको रब ताला जन्नत देगा। और वो इंसान जो नाफरमानी में अपने दिन रात गुजार कर रब की नाराजगी मोल ले ली, रब ताला उसको जहन्नम में डालेगा। आप देखें, नेमत का घर जन्नत है और अजाब का घर जहन्नम है। शहवत जानवरों को दी गई, वो शहवत पे मगलूब आ गए, शहवत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन रब्बे कायनात ने उनको जहन्नम में नहीं डाला कि उन्होंने नाफरमानी की तो जहन्नम में डाल दिया जाए। अच्छा, फरिश्तों को अक्ल दी गई, लेकिन रब ताला ने उनको जन्नत में कोई हिस्सा नहीं रखा जिस तरह इंसान का हिस्सा रखा है। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ अक्ल दी गई, उनका तो काम ही है इबादत करना। लेकिन इंसान को दोनों चीजें रखी गई कि अगर ये रब की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारता है तो जन्नत का हकदार, और अगर उसकी नाफरमानी में जिंदगी गुजारता है तो जहन्नम का हकदार। और प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाई, दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो नेमतें दी हैं कि हम गौर करते जाएं और रब की ज़ात और रब के एहसानात पर हमारा पूरा वजूद डूब जाएगा कि रब ताला ने हमें क्या क्या दिया है। आप देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को एक जिबिल्ली ताकत भी दी है, एक फितरिया ताकत भी दी है, एक अकली ताकत भी दी है, और अल्लाह ताला इल्म का नूर भी दिया है। आप देखें, जिबिल्ली जो चीज होती है ना, जो अल्लाह ताला अपने हर मखलूक को अता फरमाता है, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक को अता फरमाता है, और वो ये है कि आप देखें, बतख है, बतख का अंडा आप मुर्गी के अंडा के पास रख दें, मुर्गी बतख के अंडे को भी सेएगी और अपने अंडे को भी सेएगी। जब वक्त मुकम्मल हो जाएगा, वक्त पूरा हो जाएगा, तो अंडे से मुर्गी के चूजे भी निकलेंगे, बतख के भी चूजे निकलेंगे। अब धीरे धीरे वो बड़े होंगे। अच्छा, बतख का चूजा जो उसमें शामिल था और मुर्गी का चूजा, कभी इन्होंने तालाब देखा, नदी देखा? नहीं देखा ना। पूरी जिंदगी के कुछ अय्याम उस बतख के बच्चे ने मुर्गियों के साथ गुजारा। अब मुर्गी और बतख के बच्चे को आप पानी के पास लाइए, पानी के पास लाइए, तालाब के पास ले जाइए। मुर्गी का बच्चा बतख के बच्चे के साथ बड़ा हुआ, पला हुआ, और बतख का बच्चा मुर्गी के बच्चे के साथ बड़ा हुआ और पला। लेकिन जो ही बतख का बच्चा तालाब को देखेगा, डुबकी लगा देगा, मुर्गी का बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। ये ताकत, ये कुव्वत, ये फहम, ये इदराक किसने दिया? अल्लाह ताला ने दी ना। हालांकि उनके अंदर अक्ल नहीं है, लेकिन ये किसने ये बात उनके दिल में डाल दी कि ए बतख के बच्चे, तू तैर, तेरा मस्कन ही यही है, तेरा ये तो गुलिस्तान है, तेरे लिए बागीचा है, तेरे खेलने की जगह है। और मुर्गी के बच्चे के अंदर किसने ये बात डाल दी कि नहीं नहीं, तुम मत जाना वरना डूब जाओगे, तुम मत जाना डूब जाओगे। ये जिबिल्ली कुव्वत है। इसी तरह बच्चा पैदा होता है ना, बच्चे को कोई खबर नहीं होती कौन सी चीज कहाँ रखी है। 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते, 1 महीने का बच्चा बता सकता है? नहीं बता सकता ना। लेकिन अल्लाह ताला उसको जिबिल्ली कुव्वत दी है कि माँ का सीना चाहे जहां हो, वो बच्चा माँ के सीने में मुंह लगाता है, कहीं इधर उधर मुंह नहीं लगाता। आप देखें, आप कहेंगे कि साहब माँ बच्चे के मुंह को लेके सीने पे लगा लेती है, तो चलो आपके घर में अगर मुआमला हो तो आप देख लेना, माँ को कह देना कि आप मुंह मत लगा। वो बच्चा ढूंढते ढूंढते माँ की छाती ढूंढ लेता है। किसने उस बच्चे को बता दिया? अभी तो उसके पास अक्ल भी नहीं है, शऊर भी नहीं है, ना कोई ऐसे एहसासात हैं। वो कौन सी चीज है? तो वो जिबिल्ली कुव्वत है जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी है। वो जिबिल्ली कुव्वत उसको उसकी रहनुमाई करती है कि तेरे पीने की जगह यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, माँ की छाती है और वो यहाँ है। तो प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाई, अल्लाह ताला ने एक जिबिल्ली कुव्वत भी दी, एक अकली कुव्वत भी दी, और बेशुमार नेमतें दी। अब इन्हीं में से बाज़ चीज़ें वो हैं जो हमें बिगैर तजर्बे के हासिल हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तजर्बे से हासिल होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें तजर्बा नहीं करना होता। अगर तजर्बा करने जाएंगे तो अपने वक्त को सर्फ करेंगे, ज़ाय करेंगे। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनमें तजर्बा किया ही नहीं जा सकता, और वो चीज़ है मौत। वो चीज़ क्या है? ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, छू कर आप तजर्बा कर सकते हैं। एक ने बताया साहब ये चीज़ मीठी है, हमने मान लिया, तो मानकर हमें तजर्बा हो गया।
लेकिन साहब हम ये चीज मीठी है कि खट्टी है, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तो वो कहेगा भाई खा के देख लो। जब खा के देखा हाँ वाकई में मीठी है, तो हमने तजरीबा किया ना, तजरीबे से हमें पता चला कि ये चीज मीठी है। लेकिन मौत एक ऐसी शय है कि इसका तजरीबा नहीं किया जाता। अगर तजरीबा करेंगे तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो प्यार और मोहतरम इस्लाम भाई, मौत ऐसी चीज है कि इसका तजरीबा नहीं करना। अब इसका इल्म कैसे होगा? वो चीज मीठी है कि खट्टी है, या तो किसी के बताने से मालूम हो जाती है या तजरीबा करने से। और कोई अगर चीज ऐसी हो कि ना खाई जा सकती है ना तजरीबा की जा सकती है, तो अब कैसे मालूम होगा? अल्लाह ताला ने ऐसी चीजों में इंसान को मजबूर नहीं रखा। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया किराम को भेज दिया कि ठीक है तुम नहीं जान पाओगे तो लो मैं अपना नबी भेजता हूं, वो तुम्हें बताएगा कि कियामत क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, मौत क्या है। तो अल्लाह ताला ने हम पर कितना एहसान किया कि जिन चीजों तक हमारी रसाई हो सकती थी और हमारे लायक जो चीजें हो सकती थी, अल्लाह ताला ने वो कुव्वतें भी अता की। और जहां तक हमारी अक्ल की, हमारी जिबिल्ली कुव्वत की, हमारी फितरी कुव्वत की, हमारे इदराकात की, हमारे एहसासात की रसाई नहीं थी, वो चीजें मालूम करने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को भेज दिया। तो प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, नबी ने बताया जहन्नम है, नबी ने बताया जन्नत है, नबी ने बताया आखिरत है, नबी ने बताया रब की रिजा अगर हासिल हो गई तो फिर तो चंगे ही चंगे हैं। तो प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हमें भी नबी के फरमान पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को नेकियों वाली गुजारनी चाहिए। इंशाल्लाह नेकियों में जिंदगी बसर करेंगे तो वारे ही न्यारे होंगे। इस दुनिया में भी हमें सुरखरुई हासिल होगी, आखिरत में भी सुरखरुई हासिल होगी। अब नबी ने क्या बताया? नबी ने बहुत कुछ बताया। मैं दो लफ्ज आपके सामने रखूंगा, बयान को इख्तिताम की जानिब लाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दुनिया फानी है, ये दुनिया क्या है? आखिरत बाकी है। और फिर फरमाया कि फानी को आखिरत पर यानी बाकी रहने वाली पर तरजीह ना दो, बल्कि बाकी रहने वाली शय को फना होने वाली शय पर तरजीह दो। आखिरत हमें नहीं मालूम था ना, अल्लाह के नबी ने बताया दुनिया फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आखिरत बाकी रहेगी, हमेशा रहेगी। अब यह भी बता दिया कि आखिरत जो बाकी है इसको तरजीह दो, इसको जो है आप तरजीह दो, यानी इसको अपनाओ और दुनिया को कम अपनाओ। आखिरत को पहले रखो, दुनिया को पीछे बाद में रखो। आखिरत का मुआमला पहले, आखिरत के मुआमले के लिए पहले सोचो, दुनिया के मुआमले के लिए बाद में सोचो। क्यों? क्योंकि आखिरत बाकी रहने वाली है। अब हम अपनी जिंदगी में देख लें कि हम क्या करते हैं। हम पहले दुनिया के लिए सोचते हैं या आखिरत के लिए सोचते हैं? तो हमें आखिरत के लिए सोचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें यही फिक्र देता है कि हम अपनी आखिरत के लिए सोचें। अगर हम आखिरत के सोचने वाले बन गए, इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। कल जुमेरात का दिन है, हफ्तावार इज्तिमा है। तमाम इस्लामी भाई कोशिश करें, खुद भी शिरकत करें, दूसरे इस्लामी भाइयों को भी शिरकत करवाने की नियत करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन।